Hello students, today we will discuss Thevenin theorem. This theorem is used to solve complex networks. If we have a complex network containing many sources and resistance there, then you can solve by taking a single voltage source and a series resistance with it and RL is connected with it. Then the complex problem can be solved easily by using Thevenin theorem. So in this theorem, the statement is that there is a complex network, two terminal, this is complex network, या आप इसको कह सकते हो लीनियर सर्किट, और दिस इज टू टर्मिनल लीनियर सर्किट and there is a load resistance here. So this is a complex network or linear circuit containing number of sources and resistances. So any two terminal linear circuit containing number of sources and resistances. This is number of sources and resistances are in this complex network and there is load resistance here. So if we want to find the current across this load resistance या voltage across this load, then this complex circuit can be solved by using Thevenin theorem. So this circuit can be replaced, it can be replaced by a circuit containing source voltage, single source voltage and a resistance in series with it, that is R Thevenin, and this is our load resistance. Now we can easily find the current across this load या voltage across this load. So for that these two resistances are in series, then total resistance, effective resistance here will be RTH plus RL, and if you use current through this, we want to find current across it, then it will be total source voltage V Thevenin upon R Thevenin plus R of L. Using this result, we can easily find the current across load या voltage across load by multiplying this current with the resistance. Okay. Now what are the steps followed to find V Thevenin and R Thevenin? That is the main purpose of this theorem. तो पहली डेफिनेशन इस थ्योरम की अगर आपको लिखनी है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एनी टू टर्मिनल लीनियर circuit containing a number of sources and resistances can be replaced by a single circuit या by a circuit containing a single voltage source, can be replaced by a circuit containing a single source जिसको हम बोलेंगे सिंगल सोर्स, दैट इज वी थेवेनिन, एंड ए रेजिस्टेंस आर थेवेनिन इन सीरीज कनेक्टेड विद लोड रेजिस्टेंस. This is the statement of the Thevenin theorem. So according to this theorem, any two terminal linear circuit containing a number of sources or resistances can be replaced by a circuit containing a single source. That source is known as V Thevenin and the resistance in series with it, that is R Thevenin, and connected with the load. This is the statement of the theorem. नाउ आप ये जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है आपका, इसको हम बोलते हैं द सिंगल वोल्टेज सोर्स. दिस इज नोन एज थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स, या आप इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोल सकते हो अक्रॉस लोड, ओपन सर्किट वोल्टेज.
अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा जो टर्म है आपकी, जो सिंगल रेजिस्टेंस यूज किया था इन सीरीज, द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दिस is called Thevenin resistance. Thevenin's resistance. अब हमारा पर्पज होगा इन दोनों को फाइंड करना। वी थेवेनिन क्या कैसे निकालेंगे और आर थेवेनिन कैसे फाइंड करेंगे। वी थेवेनिन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा। तो ओपन सर्किट करने के लिए इस लोड को यहाँ से आप रिमूव कर देंगे, सॉरी यहाँ पे तो कनेक्शन रखेंगे। इस सर्किट में आप यहाँ से लोड को रिमूव कर दो। उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो टर्मिनल्स के बीच में, लोड ओपन सर्किट करेंगे, इसको सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या कर देना है, ओपन सर्किट करना है, लोड को रिमूव कर देना है यहाँ से। और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दीज टू एंड्स, दैट इज नोन एज वी थेवेनिन। ये जो आपका निकलेगा इसको आप बोलोगे वी थेवेनिन। तो टू फाइंड वी थेवेनिन हमें क्या करना पड़ेगा, लोड को ओपन करना है और वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वी थेवेनिन। देन यूजिंग KVL और KCL in this circuit we can find the value of VThevenin। ठीक है, now the step to find, तो इसमें क्या होगा, steps followed to, first step is to find VThevenin। तो steps involved in solving problems। फर्स्ट स्टेप होगा टू कैलकुलेट वी थेवेनिन। वी थेवेनिन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, टू टर्मिनल, देयर इज लोड रेजिस्टेंस RL बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, लेट्स से A एंड B। तो इसको हम ओपन कर देंगे। तो क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज इन अक्रॉस AB, या बोल दोगे VAB, या वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज अलोंग AB, दैट इज नोन एज वी थेवेनिन। यूजिंग सेकेंड, पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, और टू फाइंड दिस यूजिंग वी यूज KVL और KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करके हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो ओपन करेंगे सर्किट को, और टू कैलकुलेट दिस वी यूज KVL और KCL। आप VOC को फाइंड करने के लिए या वी थेवेनिन को फाइंड करने के लिए KVL और KCL को यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में हम R थेवेनिन फाइंड करेंगे। R थेवेनिन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको आप कर दोगे शॉर्ट। वोल्टेज सोर्स जो भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में प्रेजेंट हैं, वोल्टेज सोर्सेज को टू कैलकुलेट आर थेवेनिन वी यूज, वोल्टेज सोर्सेज को आप क्या करोगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्सेज अगर प्रेजेंट हैं उनको आप क्या कर देना, ओपन कर देना। देन calculate the resistance by series or parallel combination, that effective resistance is known as R Thevenin। So if we know V Thevenin, R Thevenin, then we can easily calculate the current या voltage across load। So there is some problems on Thevenin theorem। First problem is, here a complex circuit is voltage 9 volt and there is a resistance of 3 ohm, here resistance of 6 ohm, okay, and their resistance is RL, that is equals to 2 ohm। तो हमें क्या बताना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बतानी है,
क्या होगी, या करंट कैलकुलेट कर क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस करंट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए इसको शॉर्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे इसको, सॉरी शॉर्ट नहीं, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने से क्या होगा, दिस इज द रिड्यूस्ड सर्किट टू कैलकुलेट वी थेवेनिन। क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे एंड देन वोल्टेज फाइंड करेंगे इसके अक्रॉस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 9 वोल्ट एंड देयर इज 3 ओम एंड दिस वैल्यू इज 6 ओम। अब इसको अगर आप शॉर्ट ओपन करोगे तो जो पोटेंशियल इनके अक्रॉस होगी वही पोटेंशियल क्या होगी, 6 ओम के अक्रॉस होगी। तो हमें क्या करना है, 6 ओम के अलोंग जो पोटेंशियल होगी दैट इज वी थेवेनिन, ए और बी के बीच में, और वही पोटेंशियल क्या होगी, 6 ओम के अक्रॉस होगी। तो आपको वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम कैलकुलेट कर दो, दैट इज और वी थेवेनिन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हियर इस सर्किट को देखो, केवल ये आपका एक सर्किट बचेगा। यहाँ पे क्या है, 3 ओम और 6 ओम क्या है, इस 9 वोल्ट के साथ सीरीज में है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुआ, 3 और 6 9, तो इफेक्टिव आया यहाँ पे 9 ओम। वोल्टेज टोटल है 9 वोल्ट। तो करंट क्या आएगा इस सर्किट में, करंट विल बी V बाय आर, 9/9, 1 एम्पियर करंट यहाँ से ड्रॉ होगा और 1 एम्पियर इसके थ्रू जाएगा। यहाँ से अगर 1 एम्पियर करंट गया, 6 ओम क्या है रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 एंड्स A एंड B इज 6 वोल्ट। तो दिस 6 वोल्ट इज आवर वी थेवेनिन। तो हमें कैलकुलेट करना था पहले वी थेवेनिन, आपका कितना आ गया अक्रॉस AB, दैट इज 6 वोल्ट। सेकेंड स्टेप में यूजिंग KVL और KCL हमने क्या कर लिया, वी थेवेनिन फाइंड किया इसको ओपन करके। सेकेंड स्टेप में हमें आर थेवेनिन निकालना है। उसके लिए हमने बोला था कि कोई भी आपका सोर्स है उसको क्या कर देना, आपको शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है उसको हटा दो सर्किट में, मतलब सीधा वायर से कनेक्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया। और अगर करंट सोर्स होता तो उसको कर देना था ओपन, जैसे रेजिस्टेंस को ओपन किया था ऐसे। तो इस केस में अगर देखेंगे हम, RL आपका यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, इसके अक्रॉस RL यहाँ पे, ओके। अब इस सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स थे उसको क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे इस A और B के अक्रॉस ये भी इन्हीं एंड्स पे कनेक्ट है, फर्स्ट एंड के साथ 3 ओम भी इसी एंड के साथ है और B एंड पे ये भी और ये भी कनेक्ट है। तो इसका 3 और 6 क्या है, इस AB के अक्रॉस पैरेलल में है, ठीक है। और 3 और 6 पैरेलल में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो, दैट विल बी आर थेवेनिन। तो इस सर्किट में आर थेवेनिन क्या आएगा आपका, 3 × 6, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इनका सम कर दो, ये आ जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पे आर थेवेनिन आएगा आपका 2 ओम, ओके। आर थेवेनिन विल बी 2 ओम। ओके, तो यहाँ पे आपका वी थेवेनिन भी आ गया है और आर थेवेनिन भी आ गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स जो सर्किट था गिवन था उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, कैसे, वी थेवेनिन वोल्टेज आपकी कितनी रहेगी, दैट इज 6 वोल्ट एंड ए सीरीज रेजिस्टेंस आर थेवेनिन हैज़ द वैल्यू 2 ओम एंड देयर इज a load resistance is 2 ohm given in this condition. So we have to find IL or VL, voltage across this load. So we can easily find using Kirchhoff's law. Here voltage is 6 volt and total resistance 4 ohm. ये total resistance क्या होगा आपका, R थेवेनिन प्लस RL, RL भी 2 है और ये भी 2, टोटल आ गया 4 ओम। तो यहाँ से करंट अक्रॉस लोड निकाल सकते हो आप, 6/4, दैट विल बी 4 1 जा 4 और 2 4 5 जा, तो IL आएगा आपका 1.5 एम्पियर। अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस लोड चाहिए VL, तो वो वोल्टेज क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी IL × RL और 1.5 × RL is 2 ओम। तो 3 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, here a current source of 12 ampere
12 एम्पियर करंट सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है दैट इज 4 ओम एंड हेयर इज ए 2 ओम रेजिस्टेंस एंड हेयर 7 ओम रेजिस्टेंस। तो आपको दिस इज लोड रेजिस्टेंस दैट इज लेट्स से टर्मिनल ए एंड बी। ओके, तो आपको वोल्टेज अक्रॉस लोड या वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम आपने निकालनी है, ठीक है, कैलकुलेट किए करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी थेवेनिन और आर थेवेनिन फाइंड करेंगे। वी थेवेनिन फाइंड करने के लिए हमारा क्या स्टेप होता है, इसको आपको करना है ओपन करते ही, ओपन करने पे ये अब जो वोल्टेज होगी अक्रॉस ए बी दैट इज आवर वी थेवेनिन। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और अगर इसको आप ओपन करोगे तो इधर क्या होगा, कोई करंट डिलीवर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा, तो इधर नो करंट। ओपन कर दिया तो 2 ओम की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। जो पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस होगी वही किसके अक्रॉस होगी, अलोंग दिस होगी। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम इज अवर वी थेवेनिन इन दिस केस। तो हेयर सिंपल करंट आपको पता है, यही करंट आपका इस लूप में मूव करेगा, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वोल्टेज अक्रॉस दिस 4 ओम बाय ए करंट ऑफ 12 एम्पियर विल बी 48 वोल्ट। तो वी थेवेनिन इज हेयर 12 इंटू 4 वी आई इंटू आर दैट इज 48 वोल्ट आ जाएगी यहाँ से। ओके, कुछ नहीं किया, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने पे इधर नो करंट डिलीवर होगा, तो जो पोटेंशियल ए और बी के बीच में होगी यहाँ पे वही पोटेंशियल आपको अपीयर होगी अक्रॉस 4 ओम। तो आपको वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम फाइंड करना है, दैट विल बी अवर वी थेवेनिन। और वी थेवेनिन इजीली फाइंड होगी क्योंकि आपके पास ये सिंपल सर्किट बचा है। इस सर्किट में करंट आपको पता है 12 एम्पियर है, 4 ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 48 वोल्ट। ठीक है, तो इट इज अवर वी थेवेनिन। टू फाइंड आर थेवेनिन हमने बोला था जो भी करंट सोर्स हो उसको करना है ओपन, वोल्टेज सोर्स हो उसको करना है शॉर्ट। ठीक है, तो करंट सोर्स है इसको आपने ओपन करना है। ओपन जैसे ये होते हैं ना, हटा देना है टर्मिनल्स को, कनेक्शन ही हटा देना है। तो ये आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया करंट सोर्स को। तो इस केस में 4 ओम और 2 ओम इस ए और बी के बीच में किस में है, दोनों सीरीज में है। ए और बी के बीच में 2 और 6 किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज कम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज 2 + 4 दैट इज 6 ओम और दिस रेजिस्टेंस इज अवर आर थेवेनिन। ठीक है, आर थेवेनिन आ गया 6 ओम, वी थेवेनिन आ गया 48 वोल्ट। तो आप इसको इजीली सर्किट ड्रॉ करोगे, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया 48 वोल्ट का और यहाँ पे आपका आ गया रेजिस्टेंस ए बी दैट इज 6 ohm and this resistance is RL 7 ohm. तो using Kirchhoff's voltage law, current law easily V is here 48 volt. Total resistance क्या होगा, R total, R Thevenin plus R load that is 13 ohm. You can find IL current across load that will be 48 by 13 ampere. Okay. एंड वोल्टेज अक्रॉस लोड अगर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करो दिस बाय लोड रेजिस्टेंस, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, here a resistance of 6 ohm connected with 3 ohm and this is 4 ohm resistance and here a voltage of 8 volt and this is the resistance 2 ohm connected in it. Okay, this is our complex network या linear circuit containing a voltage sources and resistances. तो इस केस में हमें वोल्टेज फाइंड करनी है अक्रॉस दिस, तो ये आपका RL का काम करेगा। जैसे लेट्स से इट इज ए पॉइंट एंड इट इज बी पॉइंट, तो अक्रॉस 3 ओम आपको वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है या करंट इन दिस ब्रांच निकालना है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम को आप यूज कर सकते हो। क्या करना है, पहले हमें वी थेवेनिन फाइंड करना होगा। वी थेवेनिन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, इस ए और बी को हमें क्या करना है,
ओपन कर देना है। ओपन करने का मतलब ये यहाँ से हटा दो रेजिस्टेंस को, ओके। ये ओपन हो गया। ये ओपन होने पे हमें देखो क्या होगा, अब ए और बी के बीच में वोल्टेज आपको फाइंड करनी है। अब आप देखोगे ए और बी के बीच में 6 ओम भी कनेक्ट है। जो वोल्टेज होगी ए और बी के बीच में 6 ओम भी कनेक्ट है और ये 4 ओम भी, दोनों क्या है पैरेलल में। देखो ये ए से कनेक्ट है, ये एंड ए से है, और इसका ये दूसरा एंड है ये बी से कनेक्ट है, ओके। सॉरी। तो हमें क्या करना होगा, VThevenin फाइंड करने के लिए इसको ओपन करना है। ओपन करना मतलब इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब आपको इसमें से करंट फाइंड करना है, करंट अक्रॉस दिस या वोल्टेज अक्रॉस दिस। ये जो 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी ना, वही आपकी क्या हो जाएगी, थेवेनिन पोटेंशियल आ जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये अगर आपने ओपन कर दिया तो इस वोल्टेज सोर्स के साथ 6 और 4 ये किस में है, दोनों सीरीज में है। 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 ओम, ओके। 10 ओम और ये 2 ओम दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे इस 8 वोल्ट के साथ। तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो उनको मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे उनका सम, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 20/12 ओम। ये आ गया आर इफेक्टिव। वोल्टेज कितनी है आपकी, दैट इज 8 वोल्ट, ओके। तो यहाँ से आपको करंट मिलेगा, टोटल जो करंट होगा दैट करंट विल बी V/I। I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 20/R की जो वैल्यू 20/12, यहाँ से आ जाएगा 8 × 12/20, 4 3 जा 4 5 जा, ये 24/5 एम्पियर। ये करंट आया ऐसे, इसमें 8 वोल्ट की वोल्टेज है, ओके। और ये आपका 10 ओम की ब्रांच थी और ये आपकी कितनी थी, 2 ओम की ब्रांच थी, ओके। अगर आपको करंट निकालना है थ्रू दिस 10 ओम, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस ऊपर नीचे इनका सम और इनटू जो वोल्टेज है टोटल, ये टोटल करंट दैट इज 24/5, ओके। 4/5 एम्पियर जो करंट जाएगा वो अक्रॉस 10 ओम जाएगा। कितना करंट जाएगा, 4/5 ऑफ एम्पियर। पैरेलल में अगर करंट चाहिए इस डिवीजन में तो ये वैल्यू रखते हैं बाय टोटल इनटू अमाउंट ऑफ करंट। टोटल जो करंट यहाँ से आया था वो करंट कितना था आपका 24/5। ये डिवीजन ऑफ करंट होता है पैरेलल के अंदर। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ से जो 10 ओम के अंदर आपको करंट मिल गया, इस 10 ओम के अंदर ब्रांच में करंट होगा आपका टोटल, वो होगा 4/5 एम्पियर। और तो 6 ओम में भी यही करंट जाएगा, तो करंट यहाँ से आपको मिल गया 4/5 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना है, ये 6 ओम। इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज 24/5 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस AB। तो पोटेंशियल अक्रॉस AB दैट इज VThevenin। तो यहाँ पे आपकी VThevenin आ गई है, VThevenin होगी दैट इज 24/5 वोल्ट, ओके। अब हमें RThevenin फाइंड करना है। RThevenin के लिए क्या कंडीशन थी, इस वोल्टेज को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है। तो शॉर्ट करने पे इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं बचेगा। तो यहाँ से अब आप देखोगे इस AB के बीच में ये 4M भी कनेक्ट है और इस AB के बीच में 6 ओम भी है। 6 और 4 क्या हो जाएंगे, पैरेलल के अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ से RThevenin आ जाएगा 6-4 का पैरेलल कम्बिनेशन, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे इनका सम, ये आ जाएगा 24/10, ओके, 2.4 ओम। VThevenin आ गया, RThevenin आ गया, और आपके पास लोड है आपका 3 ओम। तो आप एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे जिसमें वोल्टेज है वो 24/5 VThevenin, RThevenin है आपका 24/10 एंड देयर इज लोड रेजिस्टेंस दैट इज 3 ओम। तो अब आप इसके अंदर करंट फाइंड कर सकते हो IL दैट विल बी 24/5 VThevenin बाय टोटल रेजिस्टेंस 24/10 + 3, 24/10 + 3, ये आपका IL आ जाएगा। और ये आएगा 24/5 बाय 30 और ये 24 दैट इज 54/10, 5 2 जा
2 से आ गया 48/54, ये आपका करंट आ जाएगा अक्रॉस लोड। अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू 48/54। छः 18, ठीक है। तो VL विल बी 8/3 वोल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।